and welcome to VLearn. This is session number 9 of Microsoft Office. In this session, we are going to cover following topics. Getting started means how we get started with PowerPoint, then PowerPoint screens, working with slides, adding content, and working with text. First of all, MS PowerPoint. PowerPoint is a presentation software package, and in this package we can create a slideshows also. Trainers and other presenters use slideshows to illustrate their presentations. Means PowerPoint का बेसिक एम होता है कि जिसको हम यूज करके प्रेजेंटेशंस बना सकें, तो हम इसे कहते हैं कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है. So the trainers and other presenter can use this particular software to present their topic or their presentations. Now, as soon as we start PowerPoint, the first task which we need to perform is create a new presentation. And creating a new presentation, we have certain topics like we can create a new presentation using an auto content wizard, using design templates, or using a blank template. We can also make a PowerPoint presentation by opening any existing presentation also. After make the desired selection, click on OK. As soon as you click on OK button, you can perform your task related to your particular selected criteria. Auto content wizard means walk us through a series of questions about our presentation, letting us to choose from a variety of predetermined content themes. Second option is design template, which allows us to choose from the various background design and slide styles to use it throughout our whole presentation. And then we have a blank presentation. The blank presentation starts us with a blank slide only. So we can see these options, like this is our PowerPoint. You can see here we have all the options. Like if we are going to create a new presentation, we can create via blank presentation, via from design templates, from auto content wizard, or from some existing presentation. First of all, we select from auto content wizard. जैसे हम auto content wizard select करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. नेक्स्ट कैटेगरी चूज करते ही आपके पास ये टाइप्स अवेलेबल हो जाएंगे कि जो भी टाइप, जिस भी रिलेटेड टॉपिक से आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, आप सिंपली उसे सिलेक्ट कर सकते हैं. लाइक आई वांट टू मेक अ प्रेजेंटेशन फॉर अ बिजनेस प्लान, सो आई सिलेक्ट बिजनेस प्लान एंड सिंपली ऐड. जैसे हम उसे ऐड करेंगे, अगर वो प्रेजेंटेशन टेम्पलेट अवेलेबल है तो वो आप यहाँ से ओके क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं. मीन्स वो यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप उसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. सो सेम ऐसे ही आप कोई भी क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे उसे सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करते ही वो आपसे पूछेगा कि आपको कैसे उसके अंदर प्रेजेंट करना है. लाइक ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन देनी है, वेब प्रेजेंटेशन देनी है, या ब्लैक एंड व्हाइट. सो वी सिंपली सिलेक्ट ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन, click on next button. We can give a presentation title to our presentation, like I'll give business. If you want to include a footer, you can write some XYZ text. Date last updated, automatically वो slide के नीचे footer एरिया में वो डेट अपीयर करेगा जब लास्ट आपने उस स्लाइड से इंटरेक्ट किया था. Then the slide number. After that select next and finally click on finish button. जैसे ही आप finish पे क्लिक करेंगे, वैसे आप देख सकते हैं ये आपकी टाइटल स्लाइड है. टाइटल आपने बिजनेस दिया था. In the next slide we have the footer area where we are having XYZ, the slide number and the date. डेट के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं. लाइक हम यहाँ से पढ़कर ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे प्रेजेंटेशन में एजेंडा टॉपिक के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है. तो यही आपका विजार्ड ऑप्शन होता है जिसमें आपको एक ओवरव्यू दे दिया जाए और उसी ओवरव्यू से रिलेटेड आप टास्क परफॉर्म कर सकें. सो दिस इज योर ऑटो कंटेंट विजार्ड. देन if we select design template, so I'll simply go for design template. यहाँ पे आपके पास बहुत सारी टेम्पलेट्स आ रही हैं. जिस भी टेम्पलेट को आप यूज करना चाहते हैं, सिंपली क्लिक ऑन इट. वो टेम्पलेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी और आप यहाँ पे वो टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं जो भी आप लिखना चाहते हैं. नेक्स्ट इज द ब्लैंक. ब्लैंक मीन्स बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी आपको नहीं चाहिए, जस्ट एज इट इज जो अपीयर हो रहा है वो वैसे का वैसे ही अपीयर होता है.
सो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनके हेल्प से हम बना सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन. द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस सेशन इज पावर पॉइंट स्क्रीन. सो हमने ये तो देख लिया कि हम पावर पॉइंट कैसे कैसे बना सकते हैं एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन, बट उससे पहले अगर हम वर्क करना स्टार्ट करें तो बस वी मस्ट फर्स्ट नो कि हम जिस एरिया के ऊपर, जिस स्क्रीन के ऊपर वर्क कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी ऑलरेडी थिंग्स अवेलेबल हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड. सो दिस इज द टैब विच इज नोन एज द स्टैंडर्ड टूल बार. मीन्स इसमें वो सारे शॉर्टकट्स हैं या स्टैंडर्ड टूल हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं. Below this we have a formatting toolbar, means option related to formatting only. This is the outline toolbar and this is the outline area. Adjacent to this we have a slide view area, means वो area जहाँ पे slide view होती है. And adjacent to this, or we can say the right corner, consists of a task pane, means जो भी currently आप task perform कर रहे हैं उससे related options आपके इस right hand side पे appear होंगे. In the below we have a view selector, then the drawing toolbar and a note area. So this is all the PowerPoint screen, means हम जो भी काम करना चाहें वो हम इस टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं और एरिया के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. Now in the particular presentation we have certain types of views. In the list of view we first have the normal view. Normal view means ऐसा view जहाँ पे आपके पास एक स्लाइड व्यू होगा, मीन्स स्लाइड पेन है, ये वो एरिया जहाँ पे आपको स्लाइड विजिबल हो रही है. On the left side we have a outline or a slide pane and below we have a click to add new. Second view is print view. Print view के अंदर वो हमें एक print view दिखाएगा कि एक शीट के ऊपर अगर हम स्लाइड को प्रिंट करवाते हैं तो वो कैसे अपीयर होगी. In the list we next have the outline view, means स्लाइड का जो एरिया है वो मिनिमाइज कर दिया है और आउटलाइन का जो एरिया है उसे मैक्सिमाइज कर दिया, जस्ट टू शो कि इस वक्त हम जो प्रेजेंटेशन व्यू यूज कर रहे हैं वो आपका आउटलाइन व्यू है. नेक्स्ट वी हैव अ स्लाइड सॉर्टर व्यू. इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू ऑल द स्लाइड्स आर अरेंज्ड इन स्मॉल पोर्शन सो दैट वी कैन व्यू कि कितनी स्लाइड्स हैं हमारी इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में. लाइक दिस इज योर प्रेजेंटेशन. This is our normal view, means in this we can see our outline pane, slide pane and the note pane. Next we have is a slide sorter view. Slide sorter view में आपकी slides को वो size को small करके सारी slides एक साथ adjust कर दे so that you can view कि आपकी presentation में कितनी slides already हैं. To get back to normal view, यहाँ पे आपके नीचे कुछ व्यू आ रहे हैं. ये शॉर्टकट्स हैं फॉर योर नॉर्मल, स्लाइड और योर आउटलाइन व्यू. तो आई सिंपली सिलेक्ट नॉर्मल व्यू सो दैट आई केम बैक टू आवर नॉर्मल व्यू. नाउ हाउ टू वर्क विद अ स्लाइड. फर्स्टली चेंज एंड सॉर्ट द स्लाइड ऑर्डर. On the outline tab in the normal view, select one or more slide icons and then drag the selection to the new location. This is when we want to select or to drag the slide in the outline tab. Second option is you can do the same task by using the slide tab only. When we select the slide tab in the normal view, select one or more slide thumbnail and then drag that particular selection to a new location. Third option to change the order is slide in the slide sorter view. Select one or more slide thumbnails and then drag that particular thumbnails to a new location. That is, this is your slide and this is your outline view. Simply click on the slide which you want to move and drag it to the desired location. As you can see, adjacent agenda जो है previous आपका second slide था, जैसे ही मैंने उसे drag किया now it becomes the fifth slide. Second option is related to your slide panes. Simply select the slide, like I want to move this slide and just drag it to the desired location. In this way you can sort or arrange your slides in a particular or a desired option. Third option is related to your slide sorter view. In this, select the thumbnail and drag it to the desired location. So these are the three options. By using these three options, I can arrange my slide in a certain order. Now, next is delete a slide.
On the outline tab or a slide tab in a normal view, simply select the slide which you want to delete, and if you want to select the slides in an order, so just simply press the shift key as you click, and for the slide not in order, press Ctrl as you click. On the edit menu you can click this delete slide. जैसे ही आप delete slide पे क्लिक करेंगे वो स्लाइड जो आपने सिलेक्ट कर रखी है उन्हें वो डिलीट कर देगा. As in this, we first return to normal view. In normal view, I want to delete second and a fourth slide. So if I want to delete second and third, I simply press shift key and then select 3 because 2 and 3 are in order. But if I want to select a slide 2 and 5, then I press control key because वो एक order में नहीं है, तो मैंने control key press करके 2 and 5 को select किया. After making the selection, click on edit menu, and the edit menu we have a delete option, so that when we click on delete option, it simply delete all the slides which is selected by us. And we can also delete that particular slide by right clicking on the slide and select delete slide. Next is hide a slide. On a slide tab in the normal view, select the slide you want to hide. On the slideshow menu, click hide slide. Hide slide means slide को हमें delete नहीं करना but कुछ टाइम के लिए hide करना है. So हमें कैसे पता चला कि वो hide हुई है? जो hidden slide होगी उसका icon जो है means जो slide number होता है उसके पास वो hidden हो जाएगा. जो simply जैसे मैंने second slide को hide कर दिया तो first के बाद वो मुझे third slide appear करेगा slide show view में rather than going for first, second and third. So if I want to hide this particular slide number 3, I select the slide and then click on the slideshow menu and select hide slide. जैसे ही उसे hide slide करेंगे आप देख सकते हैं जो 3 नंबर है उसके ऊपर एक क्रॉस मार्क लगा हुआ गया है. That means slide delete नहीं हुई है, but जब हम इसका slide show view करेंगे तो ये slide मुझे show भी नहीं होगी. Simply first, second and then fourth. Like if I click on slideshow and view slideshow, this is the first, second and then the skipped one is skipped. That is your third slide. So for unhiding that particular slide, simply select the slide which is hide, then slideshow and again click hide slide. जिस ऑप्शन से hide slide अप्लाई होता है उसी ऑप्शन से हम hide slide को unhide कर सकते हैं. Now insert a new slide. अगर मुझे कोई नई स्लाइड अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करनी है, एक नई ब्लैंक स्लाइड, सो फर्स्टली क्लिक ऑन द फॉर्मेटिंग टूलबार एंड क्लिक न्यू स्लाइड. With the insertion point in the outline or a slide tab, press enter, or in the slide layout task pane. Task pane means ऐसी एक विंडो जो ऑफिस प्रोग्राम में आपको दी गई है जिससे कि आपको प्रोवाइड किया जाए कि कौन सी कमांड किस पर्टिकुलर मींस लोकेशन में स्माइल साइज में है, सो दैट कि आप करंटली देख सकें कि आप क्या कमांड अप्लाई कर सकते हैं. तो वहां से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, क्लिक किया और वो ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा आपकी स्लाइड पे. Like this is the presentation. I want to insert a slide after fourth slide. So जैसे हम फोर्थ स्लाइड पे गए मुझे इंसर्ट करनी थी तो मैंने फोर्थ स्लाइड को सिलेक्ट किया, देन क्लिक राइट क्लिक ऑन इट. आफ्टर दैट न्यू स्लाइड ऑप्शन को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे एक न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी. न्यू स्लाइड के अंदर हम डिफरेंट लेआउट्स यूज कर सकते हैं. लाइक दीज आर द लेआउट्स. लेआउट्स मीन्स क्या आप उस स्लाइड के ऊपर लिखना चाहते हैं. लाइक बाय डिफॉल्ट टाइटल एंड कंटेंट आ रहा है, आप चाहते हैं तो कंटेंट लेआउट भी आ सकता है. मीन्स एक ऐसी स्लाइड जिसके ऊपर आप टेबल्स, चार्ट्स कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं और कुछ लिख भी सकते हैं. सो इन दिस वे यू कैन इंसर्ट द स्लाइड ऑल्सो. यू कैन ऑल्सो इंसर्ट स्लाइड बाय गोइंग टू इंसर्ट मेन्यू एंड देन क्लिक इंसर्ट स्लाइड. नाउ एडिंग कंटेंट टू द इंसर्टेड स्लाइड. सो ये आपकी एक ऐसी स्लाइड है जो पिक्चर में आप देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज क्लिक टू राइट टाइटल. मीन्स ये कुछ प्लेस होल्डर होते हैं जहां पे हम कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं. सो वो हमें ये बताता है कि हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं एक कर्सर अपीयर होता है, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं और प्लेस होल्डर को हम रिसाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस. मीन्स वी कैन इंक्रीज इट्स साइज और डिक्रीज.
जहाँ पे लिखा होता है आपका क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल, सिंपली वहां जाके आप क्लिक करिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए. दिस इज द वे टू इंसर्ट अ टेक्स्ट इन द स्लाइड. Like in this I want to insert text, so I simply click on it. जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक टू ऐड टाइटल को रिप्लेस कर देगा विद दैट कर्सर साइन एंड यू जस्ट स्टार्ट टाइपिंग. In this way you can type or you can insert text in the particular slide. This is the slide. In this slide I simply select this layout, means only the title, so I can write title here. And now यहाँ पे मुझे कुछ कंटेंट टाइप करना है, बट मेरे पास कंटेंट टाइप करने के लिए कोई प्लेस नहीं है, सो आई सिंपली गो टू इंसर्ट मेन्यू एंड क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स, सो दैट जैसे ही हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स पे तो हमारे माउस का कर्सर चेंज हो जाएगा. हमें क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है उसे अपनी स्लाइड के ऊपर उतने एरिया में जितना हमें उस टेक्स्ट बॉक्स की नीड है, और वहां पे टेक्स्ट टाइप करना आप स्टार्ट कर दीजिए. एंटर प्रेस करके हम अपने टेक्स्ट बॉक्स का साइज इंक्रीज कर सकते हैं. और शॉर्टकट इज बाय गोइंग द कॉर्नर्स. आपके पास एरोज अपीयर होंगे, उन एरोज को यूज करके आप साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. सिंपली से सिलेक्ट करके आप फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं. मींस कैन इंक्रीज द साइज, डिक्रीज द साइज, व्हाटएवर यू वांट. सो इन दिस वे यू कैन इंसर्ट द टेक्स्ट इन द पर्टिकुलर स्लाइड. Now, next is the inserting notes. As जैसे हमने व्यू डिस्कस किए थे, हमारा एक नॉर्मल व्यू था जिसके अंदर एक नीचे एरिया शो हो रहा था, जस्ट जहां पे क्लिक टू ऐड टाइटल या क्लिक टू ऐड टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, सिंपली लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड नोट्स. मीन्स जब हम प्रेजेंटेशन को देते हैं तो हम प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते वक्त कुछ शॉर्टकट्स यूज करते हैं. लाइक हम चाहते हैं कि मैथ्स का फॉर्मूला मुझे इंक्लूड करना है और वहाँ पे एक सिग्मा साइन मैंने यूज किया है, बट फ्यूचर यूज में मैं अगर किसी को प्रेजेंटेशन देती हूँ या फिर मैं खुद उसे लॉन्ग गैप के बाद उसे यूज करना चाहती हूँ, तो मैंने अपने लिए कुछ नोट्स बना लिए, सो दैट जैसे ही उन नोट्स को पढ़े मुझे एकदम से मेमोराइज हो जाए कि मैंने स्लाइड के अंदर जो सिंबल्स यूज करे हैं पर्टिकुलरली इन सिंबल्स का पर्पस क्या है. सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस हम नोट्स राइट कर सकते हैं अपने स्लाइड के अंदर. लाइक दिस इज द नॉर्मल व्यू एंड हियर यू कैन राइट द नोट्स. नोट्स जो है वो एक प्रेजेंटर के लिए, उसी की रेफरेंस के लिए होते हैं. जब हम पावर पॉइंट पे स्लाइड शो करेंगे तब ये नोट्स विजिबल नहीं होंगे. मीन्स द नोट्स आर ओनली एप्लीकेबल टू द प्रेजेंटर, नॉट द लिसनर और व्यूअर्स. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग हेडर एंड फूटर इन द स्लाइड्स. For inserting header and footer, click on View menu and after that select Header and Footer. As soon as you select Header and Footer, this dialog box will be appeared. On the slide you can see we have a footer option only. Footer option जो है हमारा स्लाइड के अंदर जस्ट डेट इंक्लूड करने के लिए, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर और कुछ फिक्स टेक्स्ट जो आप लिखना चाहते हैं. अगर आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ उसी स्लाइड पे अप्लाई होगा जिस स्लाइड पे आप करंटली वर्क कर रहे हैं. बट अगर आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो वो सारी की सारी जो भी प्रेजेंटेशन में आपकी स्लाइड्स हैं उन सब पे अप्लाई कर देगा. सो इन द प्रिंट प्रीव्यू यू कैन सी दैट ये आपका एरिया होता है डेट के लिए. दिस वन फॉर द फुटर, मीन जो आप यहाँ इस एरिया में टाइप करेंगे वो यहाँ मिडल में अपीयर होगा. और लास्ट वन इज फॉर स्लाइड नंबर. अगर आप इस ऑप्शन को जो कि डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड ऑप्शन है उसे क्लिक कर देते हैं तो वो टाइटल स्लाइड को छोड़कर बाकी सभी स्लाइड्स के ऊपर इस फुटर को अपीयर कर देगा. Like in this we go to view. In view we select header and footer, date and time selected, slide number selected and the footer. तो हम फुटर को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं विद ABC. स्लाइड नंबर हमने अनहाइडेड कर दिया है एंड डेट एंड टाइम भी. और ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं सिंपली अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई टू ऑल नहीं कर रहे. तो जैसे मैं अप्लाई करूंगी जो करंटली स्लाइड थी मेरी सिर्फ उसी में ही चेंजेस आए. एज यू कैन सी दिस इज द करंट स्लाइड और यहाँ पे सिर्फ ABC लिखा हुआ है, ना तो स्लाइड नंबर है और ना ही डेट, बिकॉज मैंने इस स्लाइड को सिलेक्ट करके ही उस ऑप्शन को अप्लाई किया.
अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट किया जाए तो इस ऑप्शन के अंदर वो एक्स वाई जेड, स्लाइड नंबर, डेट, सारे ऑप्शंस अपीयर हो रहे हैं. सो इन दिस वे वी कैन अप्लाई हेडर एंड फुटर इन द पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन. Next is how we can work with the text in the presentation. So जब भी हम टेक्स्ट के थ्रू वर्क करते हैं, मेन एम हमारा होता है हाउ टू फॉर्मेट दैट टेक्स्ट. सो सिलेक्ट द टेक्स्ट विच यू वांट टू फॉर्मेट, क्लिक ऑन द फॉर्मेट मेन्यू, font to make changes such as your font size, type and effects. जो भी इफेक्ट्स आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए एंड सिंपली क्लिक ओके. एज सुन एज यू क्लिक ओके आपका टेक्स्ट अकॉर्डिंगली फॉर्मेट हो जाएगा. Next type of formatting is related to your bullets and number list. Means presentation जब भी हम देते हैं, हमारा मेन एम होता है कि हम प्रेजेंटिंग अपने व्यूअर्स को एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर सके एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड. सो वी प्रेफर टू राइट इन पॉइंट्स रादर देन इन अ पैराग्राफ इन आवर स्लाइड्स सो दैट आवर प्रेजेंटेशन बिकम मोर अट्रैक्टिव. सो टू फॉर्मेट a list, we highlight the list or the part of list that you want to format and then click on format bullets and the numbering so that the format bullets or numbering will be appeared. As we can see, this is the box. सबसे पहले हम फॉर्मेट चेंज करते हैं. लाइक मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, टाइटल को, गो टू फॉर्मेट मेन्यू एंड सिलेक्ट फॉन्ट. जैसे ही फॉन्ट आप सिलेक्ट करेंगे आपके पास कुछ फॉन्ट्स नेम आ रहे हैं, स्टाइल्स आ रहे हैं एंड देन द साइज. सिंपली क्लिक, फर्स्ट वी क्लिक ऑन फॉन्ट, देन द स्टाइलिंग ऑप्शन एंड आफ्टर दैट द साइज. ये इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं लाइक अंडरलाइन, एम्बोज. मोreover आप कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड देन क्लिक ओके. जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी एज इट इज. Next way to format is to apply the bullets. So bullets apply करने के लिए हमें again format menu में जाना है. In this we next have the bullets and numbering. So just select the bullets and numbering. Bullets के अंदर कुछ certain bullets होते हैं, आप चाहें तो picture bullets भी apply कर सकते हैं. After just clicking on picture, जो भी bullet apply करनी है just click on it and press OK. You can see a bullet will be appeared in front of the text where the cursor is, and after that we just press on enter and enter and accordingly the bullets appeared. Now if you want to change the bullet, simply select the list and again go to format menu, bullets and numbering, and you can change the particular bullets. नॉर्मली हम बुलेट्स को यूज करते हैं जब हमें कुछ ऑन ऑर्डर लिस्ट प्रिंट करनी है. मीन्स ऐसी लिस्ट जिसका मुझे ऑर्डर मेंटेन नहीं करना. बट अगर मुझे ऑर्डर मेंटेन करना है, लाइक मुझे काउंटिंग मेंटेन करनी है, सो आई सिंपली गो टू नंबर बुलेट. इन द नंबर बुलेट वी हैव ABC 1 2 3 एंड वी कैन ऑल्सो सिलेक्ट कि वो 1 से स्टार्ट करे या 3 से. मीन्स ये हमारे ऊपर टोटली डिपेंड करता है. हम चाहें तो उसे कह सकते हैं कि वो लिस्ट तो स्टार्ट करे बट विद C, with 3 or any number. We can also change the bullet color also according to our need. After make the desired changes, click on OK button. As soon as you click OK button, you can see the list is appearing as an order list, but this time the ordering starts with 3 number and goes like 3 4 5 rather than 1 2 3. So in this way you can apply the all the numbers or all the bullets so that कि आपका वर्किंग बहुत एक्यूरेट हो सके और प्रॉब्लम ना आए. अब मैं कोई भी लिस्ट अरेंज कर सकती हूँ. लाइक मैंने यहाँ पे अपनी थिंग्स की एक लिस्ट बनानी है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दी थिंग्स और यहाँ पे उनको टाइप करना स्टार्ट कर दिया जो भी मुझे लिस्ट चाहिए. बाय डिफॉल्ट जो टाइटल एंड कंटेंट भी होता है वहाँ पे आपके पास एक बुलेट अपीयर होता है जस्ट टू शो कि जो भी हम टाइप करने जा रहे हैं दैट शुड बी इन बुलेट्स ओनली. सो वो ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाती हैं. जब मुझे इन बुलेट्स को हटाना है हम सिंपली उसे डिलीट कर सकते हैं और वो बुलेट्स हट जाएंगी. सो इन दिस वे वी कैन मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स. Now
Do it yourself. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय पावर पॉइंट, एक्सप्लेन इट्स यूज। मीन्स आपको ये एक्सप्लेन करना है कि पावर पॉइंट होता क्या है और हम उसे किस लिए यूज करते हैं। मीन्स ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर टूल है, क्यों हम इसे यूज करना है, क्यों नेसेसरी है पावर पॉइंट पढ़ना। एंड सेकेंडली राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट हेडर एंड फुटर ऑन अ स्लाइड। मीन्स वो सब स्टेप्स लिखने हैं जिनको यूज करके आप अपनी स्लाइड के ऊपर हेडर एंड फुटर अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट आप उसे यूज कर सकें अपनी प्रेजेंटेशन में। सो that's all for this session. Thank you. Happy learning. We learning.